Hello students. In last lecture we have discussed the 3 points of Bohr's atomic model, and in this lecture we are going to continue the same thing. Okay. So the next point from the Bohr's model is, next point is electron revolves in only those orbits for which energy is fixed. So we have discussed already this. So electrons are moving in only those orbits for which the energy of an orbit is fixed. Okay, and the state and that's why this expressed as energy of electron is quantized. Energy of electron is quantized. So only electron is moving in only those orbits. It means that the energy of electron is quantized or fixed. What we can say fixed. So at that particular level, at that particular energy level, the energy of electron is fixed, or we can say it as a quantized. क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिटल में मूव करता है जिसके लिए एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है, और एक फिक्स ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव होता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है एट दैट स्टेट। उस एनर्जी लेवल को, उस स्टेट को, उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। The next point what we are saying that, Bohr is saying that the angular momentum of an electron is integral multiple of h by 2 pi. Okay, where h is Planck's constant once again. Okay, this is what Planck's constant. So what he is saying that mvr, okay, angular momentum of an electron, mvr is equal to n into h by 2 pi. What it suggests that, so electrons are present in only those circular paths, only those orbits for which this angular momentum mvr is equal to n into h by 2 pi. If we are not getting this like this point circular path, we are going to say that in that particular circular path electron is not going to be present. Okay, so angular momentum of an electron is integral multiple of h by 2 pi. Okay, next what we are saying, when electron present in the lowest energy state, okay, when electron is present in the lowest energy state, in that particular state the electron is not going to lose energy. Okay, lose energy, and this state is called as ground state, or this is called as a normal state. Normal state. क्या बोल रहे हैं लोग कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, के एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल है। एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? mvr से। m मतलब मास है, v मतलब वेलोसिटी है, और r मतलब उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अगर ये एंगुलर मोमेंटम को हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या है? n into h by 2 pi है। ठीक है, या फिर ऐसा हम लिख सकते हैं nh by 2 pi है। ठीक है, अभी कोई एक सर्कुलर पाथ के लिए हमें ये इंटीग्रल मल्टीपल के कोई एक सर्कुलर पाथ आप सेलेक्ट करते हो, इससे मल्टीप्लाई करते हो, तो वो जो पाथ होगा उसी पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। देखिए क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम आपका इंटीग्रल मल्टीपल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं? देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी उसके लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहता है, कोई भी एक जो पाथ उसने चूज किया है, ऑर्बिट उसने चूज किया है, उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोवेस्ट होती है, ओके, लोवेस्ट होती है, तो उस स्टेट को या फिर उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट करके बोलते हैं, या फिर नॉर्मल
we are calling it as normal state or ground state. Now for the next point, next क्या है? The energy emitted or absorbed only when an electron moves from one energy level to another energy level. One energy level to another energy level. Okay, so when एनर्जी कब इमिट होती है, इमिट कब होती है या फिर एब्सॉर्ब कब की जाती है? तो आप अगर देखोगे तो क्या बोल रहे हैं कि सीरीज जो हमने स्टडी की थी तो उसमें हमें बताया कि n1 n2 n3 होगा, तो ये दिस 1 2 3। अगर इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर से अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है या फिर इधर से इधर जा रहा है, ओके, एक लेवल से वो दूसरी लेवल पे मूव कर रहा है या फिर एक लेवल से वो ऊपर की लेवल से नीचे आ रहा है, ओके, तभी क्या होती है? एनर्जी इमिट की जाती है या फिर एब्सॉर्ब की जाती है। अभी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर ये स्टेट आपकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से वो हायर में जा रहा है तो इधर एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्सॉर्ब की जाएगी। एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब होगी। अगर वो अपर एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी? इमिट की जाएगी, दी जाएगी, बाहर दी जाएगी। ओके, सो एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स from one energy level to another energy level. Okay, तभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों बोल रहे हो? हम इधर क्या बोल रहे थे? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में जब ये होता है वो स्टेट ग्राउंड स्टेट है। अभी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो इसके लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें बाहर से। इसके लिए हम क्या करेंगे? एनर्जी देंगे। और अगर एक हायर एनर्जी लेवल से नीचे आ रहा है तो उसको हम क्या उसका जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो एक इमिट है और एक क्या है? एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन या फिर इमिशन एनर्जी का कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक अपनी ग्राउंड स्टेट छोड़ के कोई दूसरे लेवल में शिफ्ट हो जाता है, तब क्या होगा? आपका इमिशन या फिर एब्सॉर्प्शन मिलेगा। ओके, now if an electron moves from lower energy level to higher energy level, lower energy level to higher energy level, the state of electron is called as an excited state. This state is called as an excited state. देखो क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी लेवल मतलब ग्राउंड स्टेट से किसी एक हायर एनर्जी लेवल में मूव करता है, तो उस स्टेट को उस हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन की उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। और ये एक्साइटेड स्टेट में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है। तो वापस क्या करता है? नीचे आने की, अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि हमने इधर क्या बोला है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में मूव करेगा और वापस जब वो हायर एनर्जी में पहुंचेगा तो इसको क्या बोलेंगे आप? एक्साइटेड स्टेट बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? एक्साइटेड स्टेट। लोअर एनर्जी को क्या बोलोगे? ग्राउंड स्टेट। लोअर एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्राउंड स्टेट। अभी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी में मूव करता है तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। उस स्टेट को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे आएगा तो क्या होगा? इमिशन होगा। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एब्सॉर्प्शन होगा। ओके, और एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल होता है, इस वजह से वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में चला आता है। द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और इमिटेड ड्यूरिंग द shifting of electron from ground state to higher energy level or higher energy to ground state is given by an equation delta E is equal to E2 minus E1. Okay, delta E is equal to E2 minus E1 where E2 is higher energy level and E1 is lower energy level. Okay, and this gives you
the difference between the energy of two levels. Energy difference between the two energy levels or energy difference between the two orbitals. So this is the case of बोस एटॉमिक मॉडल। ओके, तो इतना कुछ बोस एटॉमिक मॉडल में हमने स्टडी किया है। ओके, एक दो चीजें हैं जो मैं वापस बोर्ड क्लियर करके लिख के आपको बताता हूँ। ओके, so what we have written in the Bose theory, what we have written, the energy of an orbit is given by an equation minus 2 pi square e square m divided by l square into h square, or by putting the value of pi e h m, what we have written the equation as minus 1312 divided by n square kilojoule per mole. This is the energy of an orbit for hydrogen atom. By using this equation we can determine the energy of an orbit for hydrogen atom. Okay, likewise the energy of orbit of hydrogen like atom is given by, okay, this is for hydrogen, ये क्या है, हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन की कोई भी एक ऑर्बिट की एनर्जी डिटरमाइन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, n इज व्हाट, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 likewise, n is number of particular that orbit। ओके, अगर आप हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी डिटरमाइन करना चाहते हैं, ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो En इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं देखो, माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू 4 z स्क्वायर n स्क्वायर l स्क्वायर, where z is equal to atomic number of an atom, atomic number of an element or atom, So if we are considering a hydrogen like atom, that is He plus Li plus 2, okay, these are hydrogen like, because what is atomic number of He? It is 2, so 1, okay, it consists 2 electrons. Now what we are writing, He plus, what it means, it consists only single electron. So now in case of He plus there is a single electron, so it is matching with hydrogen which consists only one electron. ये क्या है, He है, हीलियम है। अगर हीलियम के एक एटम क्या देखते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर और क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन करके लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अगर He का हम बात करते हैं तो He का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमने इधर क्या किया है, He प्लस किया है। He प्लस कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव किया जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तब क्या होगा, He प्लस होगा। अभी He प्लस सिचुएशन में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन He प्लस में है तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन से मैच होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स लिखते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स लिखते हैं। अभी ऐसे केस में अगर He प्लस केस में कोई एक एनर्जी स्टेट के हम एनर्जी डिटरमाइन करना चाहते हैं, कोई एक ऑर्बिट की एनर्जी डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, -2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू 4 z स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू h स्क्वायर। ओके, इधर z स्क्वायर क्या है, उस एटम का एटॉमिक नंबर है। ओके, तो हेलियम के लिए हम इधर क्या करेंगे, 2 करेंगे। ओके, या फिर हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्या करके लिख सकते हैं, -1312
1 2 z square divided by n square. This equation gives you the energy of an orbit for hydrogen like atom. That is, one is He plus, another one is Li. Okay, so Li has 3 electrons. Its atomic number is 3. But Li plus 2. When we write plus 2, what it means that it loses 2 electron to give a Li plus 2. Now in case of Li plus 2, there is a single electron. There is a single electron. It means that it is matching with hydrogen. Matching with hydrogen. So hydrogen like atom, what we are writing the formula as -1312 z square divided by n square kilojoule per mole. So this is one equation. Another one equation we write for the radius. Okay, write for the radius to determine the radius. Okay, so radius of an orbit. So those given an equation to determine the radius of an orbit. The radius of an orbit is given by equation Rn is equal to n square h square divided by 4 pi square m e raised to 2 k into z. Where h is Planck's constant. Okay. Then n is the number of orbit. Number of the particular orbit. N is mass of electron. Then E is charge on electron. And K is Coulomb constant. And Z is nothing but atomic number. So for hydrogen it is 1, so we are not considering the Z, but for hydrogen like atom, that is called He plus or Li plus 2, we are going to give this Z. Okay, and if we calculate this, we will get Rn is equal to 0.529 into L square by Z square. Okay, L square by Z square. Or this is for H like atom. This is for H like atoms. ये क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिस इज नॉट Z. Okay. और हाइड्रोजन के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, और हाइड्रोजन एंड इट्स फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 और फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1. ओके, ये क्या हो जाएगा? Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट. कितनी हो जाएगी? 0.529 angstrom unit. This is the radius of first orbit. This is called as the radius of Bohr first orbit.
Okay, so this is regarding the radius, this is regarding the Bose atomic model. Okay, the drawbacks of Bose atomic model and further the new model we will discuss in the next lecture. Thank you.